Hello children, now we'll continue with Act 1, Scene 2 of the play Macbeth written by Shakespeare. As I already told you, मैंने आपको पहले ही बताया है कि इस सीन में बैटल हो रहा है एक, okay? And so here also on the stage the battle scene is depicted, and as we see there are sounds of trumpet and soldiers fighting off stage. हमको बैटल में लड़ने वाले सोल्जर्स और उनकी आवाज़ें सुनाई देती है स्टेज के पीछे से. देन वी सी किंग डंकन एंटर्स विद हिज सन्स. मैंने आपको बताया था किंग डंकन हैज़ 2 sons. Elder one is Malcolm and younger one is Donalbain. So King Duncan enters with Malcolm and Donalbain and another noble Lennox and a number of attendants. And suddenly they meet a wounded and bloody captain. तभी एक injured captain, युद्ध में घायल जो captain है उन्हें दिखाई देता है. And Duncan asks, "Who is this bloody man? Judging from his appearance, I bet he can tell us the latest news about the revolt." डंकन कहते हैं कि ये जो इंजूरियस आर्मी मैन है ये हमको बैटल का पूरा हाल बताएगा, लड़ाई का पूरा हाल बताएगा. एंड मैल्कम सेज, "दिस इज़ द ब्रेव सर्जेंट हु फॉट टू कीप मी फ्रॉम बीइंग कैप्चर्ड." ये वो सर्जेंट है जिसने मेरे को युद्ध में गिरफ्तार होने से बचाया है. Hail brave friend, tell the king what was happening in the battle when you left it. अब मेलकम उस सर्जेंट को बोलते हैं कि युद्ध की विस्तार में विस्तृत वर्णन डंकन के सामने बताओ. Captain, for a while you couldn't tell who would win. The armies were like exhausted swimmers, clinging to each other in the water, unable to move. The villainous rebel MacDowell was supported by foot soldiers and horsemen from Ireland and Hebrides, and Lady Luck was with him, smiling cruelly at his enemies. मतलब पहले जो वॉर की स्थिति थी बैटल में, शुरू में दोनों जो आर्मीज थे वो बराबरी में लड़ रहे थे. कहना मुश्किल था कौन जीतेगा. But Luck and MacDowell together weren't strong enough. Brave Macbeth, laughing at Luck, chopped his way. Now we'll also see that how Macbeth is depicted as a brave soldier, very courageous nobleman fighting in the battle. तो ये जो लाइन्स हैं इसमें हमको मैकबेथ के कैरेक्टर की ये क्वालिटीज़ भी दिखाई देंगी, कैसे वो एक बहुत ही वीर और ब्रेव फाइटर था, योद्धा था. उसने क्या किया था? ब्रेव मैकबेथ लाफिंग एट लक चॉप्ड हिज वे थ्रू टू मैकडोनाल्ड. उसने अपना जो दुश्मन था मैकडोवल, उसके शरीर के 2 टुकड़े कर दिए और उसके सिर को काट के किले की दीवारों पर लटका दिया. मीन्स मैकबेथ वॉज सो ब्रेव एंड सो करेजियस. एंड डंकन सेज, "माई ब्रेव रिलेटिव, व्हाट अ वर्दी मैन." So here we come to know that Duncan is related to Macbeth. Duncan is uncle of Macbeth. And the captain says, "But in the same way that violent storm always come just as spring appears, our success against MacDowell created new problems for us. Listen to this king." अब वो किंग को सारा हाल सुना रहा है कि जैसे ही आयरिश सोल्जर्स और नॉर्वेजियन किंग दोनों ने मिलके टुगेदर अटैक्ड आवर आर्मी. एंड डंकन आस्क्ड, "Didn't this frighten our captains Macbeth and Banquo?" और डंकन पूछते हैं कि क्या हमारे जो दोनों नोबलमैन हैं, कौन किसकी बात हो रही है? मैकबेथ एंड बैंको. क्या वो इससे डरे नहीं?
No, didn't frighten. The new challenge scared them about as much as sparrows frighten eagles. यानी नहीं, वो इस अटैक से बिल्कुल भी नहीं डरे. To tell you the truth ये है, they fought the new enemy with twice as much force as before. They were like cannons loaded with double ammunition. वो उन पर ऐसे बरसे जैसे गोला बारूद से भरी हुई कैनन्स यानी तोपें दुश्मन पर टूट पड़ती है. Maybe they wanted to take a bath in their enemy's blood. वो अपने एनिमी के खून से नहाना चाहते थे. But now I feel weak. My wounds must be tended to. इतना कहते कहते वो जो कैप्टन था उसको बेहोशी छाने लगती है क्योंकि उसके जो वूंड्स हैं उससे खून निकल रहा है और उसको अब डॉक्टर्स की या अटेंडेंट्स की ज़रूरत है. Your words like your wounds bring you honor. Take him to the surgeons. डंकन आदेश देते हैं कि जो युद्ध में घायल सर्जेंट है उसको अटेंडेंट्स के पास ले जाया जाए. द कैप्टन एग्जिट्स. कैप्टन चला जाता है वहाँ से. एग्जिट्स यानी चला जाना. हेल्प बाय अटेंडेंट्स. एंड देन वी सी हु एंटर्स. रॉस एंड एंगस. एंड डंकन आस्क्स Malcolm, the worthy Thane of Ross. Now, so Thane of Ross and Lennox come on the stage. God save the king. Duncan, where are you coming from, worthy Thane? Now Ross greets the king Duncan, and king asks him, where are you coming from? And he says, great king, I've come from Fife, where the Norwegian flag flies, mocking our country and frightening our people, leading an enormous army and assisted by that disloyal traitor, the Thane of Cawdor. मैं उस जगह से आ रहा हूँ जहाँ पे थेन ऑफ काउडोर, जो कि एक ट्रेटर मीन्स देशद्रोही है. द किंग ऑफ नॉर्वे बिगैन अ ब्लडी बैटल. उसने नॉर्वे के किंग के साथ मिलकर हमारे खिलाफ युद्ध शुरू किया. बट मैकबेथ मेट द नॉर्वेजियन अटैक्स शॉट फॉर शॉट. लेकिन हमारा जो नोबल है मैकबेथ, वो इतना वीर और बहादुर है कि उसने हर अटैक का बराबरी से, पूरी बहादुरी से जवाब दिया. Finally, he broke the enemy's spirit and we were victorious. Finally, मैकबेथ दुश्मन को हराने में सफल हुआ और हमारी विजय हुई. Victorious यानी हमारी जीत हुई. Duncan is very happy. He says, great happiness. Ross says, so now Svino the Norwegian king wants a treaty. अब इस बैटल में हारने के बाद नॉर्वे का जो किंग है वो हमसे ट्रीटी यानी संधि करना चाहता है. द थेन ऑफ काउडोर विल नेवर अगेन बिट्रे मी. डंकन सेज कि काउडोर का जो थेन है वो कभी फिर हमसे गद्दारी नहीं करेगा. क्यों? उसके खिलाफ एक्शन लिया जाए. एंड टेल मैकबेथ दैट काउडोर्स टाइटल्स विल बी गिवन टू हिम. और डंकन क्या नई घोषणा करते हैं कि काउडोर का जो टाइटल है वो किसको दिया जाए? हमारे वीर सिपाही, ब्रेव नोबलमैन हु इज़ द हीरो ऑफ दिस प्ले. हु इज़ ही? मैकबेथ. एंड रॉस गोज अवे. रॉस बोलता है मैं अभी जाकर ये खबर पहुंचाता हूँ. डंकन, द थेन ऑफ काउडोर हैज़ लॉस्ट वॉट द नोबल मैकबेथ हैज़ वन. यानी काउडोर के थेन की जो उपमा उसने खोई है, अब किसको मिलेगी? द नोबल मैकबेथ हैज़ वन. यानी अब मैकबेथ को मैं थेन ऑफ काउडोर बनाना चाहता हूँ, इस तरह की घोषणा करना चाहता हूँ. एंड दे ऑल एग्जिट. इस तरह से सब वहाँ से एग्जिट यानी सब वहाँ से चले जाते हैं. दे ऑल लीव द स्टेज. सो दिस वॉज ऑल फॉर एक्ट 1 सीन 2.